میرے آقا حسین تقریر کر رہے، بتا رہے، سب سے کہہ رہے ہیں کہ دیکھو یہ فوج جو آ رہی ہے نا جھک در جھک چاروں طرف سے، یہ خالی ہمارے خون کی پیاسی ہے، اسے صرف ہمارا خون چاہیے، تم لوگ جانا چاہو تو چلے جاؤ، تم سے یہ سوال بھی نہیں کرے گی۔ اور اس کے بعد چراغ کو گل کر دیا میرے آقا سے، بجھا دیا، چراغ بجھا دیا۔ اس کے بعد کہا اگر تمہیں شرم آتی ہے کہ میں تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں تمہیں محسوس کر رہا ہوں، تو یہ لو میں اندھیرا کیے دیتا ہوں، تم اندھیرے کا فائدہ اٹھا کے یہاں سے چلے جاؤ۔ اور میرے مولا نے یہ بھی فرمایا کہ میں تمہیں جنت میں لے جانے کا ضامن بھی ہوں، تم یہ نہ سمجھو کہ تم یہاں سے چلے جاؤ گے تو ہم تمہیں جنت میں نہیں لے کے جائیں گے، میرے مولا ضمانت بھی دے رہے ہیں کہ ہم تمہارے لیے جنت کے ضامن ہیں، ہم تمہیں جنت میں لے جائیں گے۔ مگر محبت بتا رہے ہیں کہ محبت کیسی ہے، مطلب جب چراغ روشن کیا گیا نا، دوبارہ چراغ روشن ہوا تو جتنے بھی امام کے چاہنے والے تھے سب نے تلواریں اپنے نیام سے نکال کے اپنے گلوں پہ رکھے ہوئے، اپنی گردنوں پہ رکھے ہوئے، اور یہ کہہ رہے تھے کہ مولا آپ اجازت دیں تو ہم اپنے ہاتھ سے اپنی گردن کاٹ کے آپ کے حوالے کریں۔ جناب زہیر ابن قین فرماتے ہیں کہ محبت کسے کہتے ہیں، خدا کی قسم کیسی محبت ہے۔ جناب زہیر ابن قین فرماتے ہیں مولا یہ بتائیے ہمیں کتنی بار مرنا ہے؟ مولا نے کہا کہ ایک بار مرنا ہے۔ تو اس کے بعد جناب زہیر کہتے ہیں ایک بار ہمیں مرنا ہے، اور ایک بار مرنے کے بعد ہمیں نور رسول کی زیارت ہوگی، ہمیں حوریں ملیں گی، ہمیں کوثر ملے گا ایک بار مرنے کے بعد۔ جناب زہیر فرماتے ہیں کہ اے آقا اگر ہمیں آپ کی محبت میں، خدا کی قسم ایسے جملے فرمائے ہیں کہ آپ کی محبت میں 1000 بار قتل کیا جائے اور ہمارے جسم کو جلا دیا جائے اور اس کے بعد ہماری خاک کو منتشر کر دیا جائے اور پھر ہمیں جسم دیا جائے اور پھر ہمیں قتل کیا جائے، تب بھی ہم آپ کی محبت سے روگردان ہیں۔ ایسی محبت تھی جو کربلا میں جمع ہوئی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک ذاکر تھے، ہم لوگ پڑھتے ہیں نا یا لیتنی کنت معکم فافوز معکم، اے میرے آقا حسین ہم آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم آپ کے ساتھ جنگ کرتے۔ انہوں نے یہی جملہ کہا اور انہوں نے خواب میں وہی محشر دیکھا کربلا کا، سامنے کھڑے ہیں امام حسین کے، دیکھا ایک سنسناتا ہوا تیر آتا ہے، خواب میں وہ دیکھتے ہیں ایک تیر آتا ہے۔ جب انہوں نے آتے ہوئے تیر کو دیکھا نا فوراً وہ اپنے سر کو انہوں نے بچایا، جب سر کو بچایا نا تو وہ جا کے تیر امام کی پیشانی پہ لگا اور امام نے یہ کہا کہ دیکھو ایسا دعویٰ تم نہ کرنا، جیسے اصحاب ہمیں ملے ہیں، جیسے اصحاب ہمیں ملے ہیں، نہ ہمارے بابا کو ملے، نہ ہمارے نانا کو ملے، نہ ہمارے بھائی کو ملے۔ میرے مولا نے فخر کیا ہے اپنے دوستوں کو، خدا کی فخر کیا۔ واقعاً بیان کرنا الگ بات ہے، جب انسان منزل عمل میں آتا ہے نا تب اس کی سمجھ میں آتا ہے کہ کیا ہے۔ ہم اور آپ زبان سے تو چاہے جو بیان کر دیں، چاہے جو کہہ دیں، مگر جب منزل عمل میں آتا ہے تو بڑا ہی مشکل ہے۔
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम खैमे को देख रहे हैं, खैमों में सारी बीवियों को देख रहे हैं, हर बीवी अपने बच्चों को तैयार कर रही है। कोई जज्बा ऐसा है? किसी में ऐसा जज्बा? कोई ऐसी माँ है जो असगर के झूले के पास बैठी हुई झूला भी झुला रही हो और ये भी कह रही हो मेरे लाल तुम सीनो शान में छोटे तो जरूर हो मगर हो हैदरे कर्रार के पोते। देखो मेरे पास तुम हो और मेरी सकीना है। जनाब रुबाब अपने असगर को समझाते हैं। कई महीने के अंदर जनाब 6 महीने के जनाब जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जनाब रुबाब की हालत देखी, उस गुजरे में जाते हैं, बच्चे को देखते हैं, आए रुबाब घबराओ नहीं, तुम्हारे बच्चे की शहादत तो सबसे कामयाब शहादत। मौला ने कहा तुम्हारे बच्चे की शहादत तो सबसे कामयाब शहादत। ये वही बच्चा है जब ये काफिला मदीने से चला था ना, तो कई दिन का थे जनाब अली असगर? 20 दिन या 22 दिन के। अब बताइए 20-22 दिन का बच्चे में कितना शऊर होता है? 20-22 दिन के बच्चे में कितना शऊर होता है, कितनी ताकत होती है? क्या वो ठीक से अपनी गर्दन भी सीधी नहीं कर सकता? 20-22 दिन के बच्चे में सलाहियत होती है कि अपनी गर्दन सीधी कर ले, अपना हाथ उठा ले। मगर ये अहले बैत के घर के बच्चे हैं, ये हमारे घर के बच्चे नहीं हैं। तो जनाब सुगरा ने असगर को ले लिया अपनी गोद में और असगर हुमक करके अपनी बहन की गोद में आ जाते हैं। तो जनाब सुगरा कहती है कि अब वही असगर को लेगा कि असगर अपनी मर्जी से जिसकी गोद में। अब अदादारों काफिले वाले एक एक आते हैं जनाब अली असगर को अपनी आगोश में लेने के लिए। खवातीन आती हैं, मर्द आती हैं, मगर असगर हैं जो सुगरा की आगोश को नहीं छोड़ रहे, सुगरा की गोद को असगर नहीं छोड़ रहे। जब देर हो जाती है, ताखीर हो जाती है, तो मतलब मेरे आका हुसैन आते हैं और हुसैन आते हैं, असगर सुगरा की गोद नहीं छोड़ रहे हैं, बाहें सुगरा की गर्दन में डाले हुए हैं और सुगरा असगर को प्यार कर रही है और यही कह रही है असगर सब तो जा रहे हैं, तुम रुक जाओ, तुम ना जाओ। अदादारों जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये मंजर देखा कि ताखीर हो रही है, तो एक मतलब सुगरा से असगर से कहा, कुछ कहा असगर के कान और असगर ने एक मरतबा अपनी बहन के चेहरे को देखा और हुम्मत करके हुसैन के आगोश में आ जाता। अदादारान इमाम मजलूम मालूम है मेरे आका ने क्या कहा? मेरे आका ने ये कहा होगा, या असगर तुम्हारे बगैर करबला की शहादत नामुकम्मल है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। आज आखिरी रात है, 9 मुहर्रम की रात है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। हम लोग जब घर से चलते सब एहसासी जुमले हैं, इंशाअल्लाह खुद क्रिया करेंगे। अपने भाइयों से सबसे ज्यादा बहनों को प्यार होता है कि नहीं होता? बहनें भाइयों से बहुत प्यार करती हैं, माएँ अपने बेटों से बहुत प्यार करती हैं। बेटा जब जवान हो जाता है तो माएँ देख करके फख्र। हम लोग भी जब अपने अपने घर से चले तो सब ने हमको रुखसत किया, मगर रोने वालों में बस 2 ही लोग मिलते हैं, या माँ है या बहन है। बहुत कम लोगों के आंखों में आंसू आते हैं, मगर माँ को भी ये उम्मीद होती है कि मेरा बेटा पलट के आएगा, बहन को भी ये उम्मीद होती है कि मेरा भाई पलट के आएगा। मगर अदादारों आज के शब्द माएँ अपने बच्चों को समझा रही हैं कि कल तुम्हें मैदान क़िताल में जाना। उनको मालूम है कि आज की आखिरी रात है, कल हम में से कोई बचने वाला नहीं।
हमारे बच्चों में से, हमारे जवानों में से कोई बचने वाला। अज़ादारों, शब का सन्नाटा बढ़ा। एक मरतबा मेरे आका हुसैन खैमे से बाहर निकले और मक्तल की तरफ चले। जब मक्तल की तरफ चले तो जनाब निहाल या मिनहाल आपके पीछे पीछे चले। एक मरतबा हुसैन ने किसी के आने की जब आहट महसूस की ना, तो तुम कौन हो? कहा मेरे आका मैं हूँ मिनहाल। मुझे खौफ हुआ कि आप अकेले जा रहे हैं, आप मक्तल की तरफ अकेले जा रहे हैं, ऐसा ना हो कि कोई जालिम आपके ऊपर हमला कर दे। अब मेरे मौला ने फरमाया कि अच्छा अब आ ही गए हो तो आओ मेरे साथ। अब मिनहाल मेरे आका हुसैन के साथ साथ हो लेते हैं। मक्तल में मेरे आका हुसैन एक एक जगह की निशानदही करते हैं। ऐ मिनहाल यहाँ पर बुरैर शहीद होंगे, ऐ मिनहाल यहाँ पर सईद शहीद होंगे, ऐ मिनहाल यहाँ पर ज़ोहरक़ैन शहीद होंगे, ऐ मिनहाल यहाँ पर हबीब शहीद होंगे। एक एक की निशानदही करते करते जब असहाब की बारी खत्म हो जाती है ना, तो फिर उसके बाद अपने बच्चों को और बनी हाशिम के बच्चों की तरफ मेरे आका हुसैन मुतवज्जे होते हैं और कहते कि देखो यहाँ कासिम का लाशा पामा, यहाँ अकबर के सीने पे बर्छी लगेगी, यहाँ पर औनो मोहम्मद शहीद होंगे। एक एक की निशान करते हुए मेरे आका बताते हैं कि यहाँ पर ये शहीद होंगे, वहाँ पर वो शहीद होंगे। और जनाब मिनहाल देखते जाते हैं, मगर किसी बीवी के रोने की आवाज़ आती है। अब जब मक्तल में रोने की आवाज़ आती है ना, तो जनाब मिनहाल कहते हैं कि मेरे आका यहाँ पर कौन खातून है जो रो रही है, कौन खातून है जो रो रही है, इंशाल्लाह आप खूब गिरिया करेंगे। एक मौका मेरे मौला ने फरमाया, ऐ मिनहाल उधर मत जाना, उधर मेरी माँ है जो मुझसे पहले मक्तल में आ गई है और मेरे जमीन पर गिरने की जगह को साफ कर रही है। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। चंद जुमले मसाइल के और इस मजलिस में तमाम बातें। अज़ादारों, रोज़े आशूरा आ गई, जब सब जाम शहादत नोश कर चुके, मतलब मेरे आका हुसैन निकले और निकलने के बाद मक्तल में आए। जब कोई न बचा, अब्बास को देखा, कासिम को देखा, सब शहीद लाशें रन में पड़े हुए हैं। अब हुसैन का जब कोई सहारा नहीं रहा ना, तो एक मरतबा मेरे आका हुसैन ने फरमाया, हल मिन नासिरिन यंसुरना, है कोई जो मेरी मदद करे। जैसे ही आवाज पहुंची है, अज़ादारों खैमे में दो ही मर्द मौजूद थे, एक जनाबे सईदे सज्जाद थे, एक जनाबे अली असगर थे। सईदे सज्जाद के कान में जब ये आवाज गई ना, एक मरतबा ज़ौफ़ व कमजोरी को अपने समेट करके आप खड़े हो जाते हैं, खैमे का पर्दा हटाते हैं, बाहर निकलना चाहते हैं। एक मरतबा हुसैन ने जब सईदे सज्जाद को देखा ना, तो ज़ैनब से फरमाया कि ऐ बहन ज़ैनब, अरे सईदे सज्जाद को रोक लो, नहीं तो क़यामत आ जाएगी, दुनिया हुज्जत इलाही से खाली हो जाएगी। अज़ादारों, जनाब ज़ैनब ने आका हुसैन को रोका, मगर असगर ने अपने को झूले से जमीन पे गिराया। बाद रवायत ये है कि असगर ने अपने को झूले से जमीन पे गिराया और घुटनियों के बल दरे खैमा की तरफ जाना शुरू किया। बीवियों ने जब जनाब अली असगर की ये हालत देखी, एक कोहराम बर्पा हो जाता है। आप मेरे सुनते हैं, तो सुन करके एक मरतबा कहते हैं कि क्या हो गया है, अरे खैमे में क्या किसी बच्चे का इंतकाल हो गया है। उधर खैमे से आवाज आई, नहीं मेरे आका, अरे असगर मैदान की तरफ जा रहे हैं। जज़ाकुम रब्बुकुम खैरन जज़ा। खुदा आपको किसी गम में न रुलाए। यहाँ आपके रोने पर पाबंदी नहीं है, यहाँ आपके रोने पर कोई तमाचे नहीं मार रहे हैं, कोई आपको अज़ियत नहीं पहुँचा रहा है, यहाँ आप दिल खोल के रो रहे हैं। मगर जरा उस मंजर को याद कीजिए, जब सकीना हाय बाबा कह के रोती थी ना, तो नैज़े की अनियों से उसे तकलीफ दी जाती थी, शिब्र के
के तमाचे खाने बीवियों को रोने नहीं दिया जा रहा था। अरे एक सैयदे सज्जाद थे जिनके हाथों में हथकड़ियां और पैरों में बेड़ियां और कमर में लंगर और गले में खारदार तोक पड़ा हुआ था। जब ये काफिला उधर से गुजरने लगा, अज़ादारों एक मर्तबा सैयदे सज्जाद ने मक्तल की तरफ देखा कि अरे हमारे बाबा का लाशा बेगौरो कफन पड़ा हुआ है। सैयदे सज्जाद तड़प के कहते हैं, चेहरे का रंग बदलने लगता है। ज़ैनब ने सैयदे सज्जाद को देखा, देख करके कहा, ऐ सज्जाद, अरे ये तुम्हारी क्या हालत हो रही है? बीमार करबला ने फरमाया, ऐ फूफी अम्मा, वो बेटा जिंदा क्यों है जिसके बाप का खुदा आपको किसी गम में न रुलाए सिवाय गमे सईदुल शुहदा के। बस अज़ादारों चंद जुमले मसाइब के और आपकी। अब असगर को लेने के लिए हुसैन आए हैं। असगर को लिया, लेके खैमे से बाहर निकलना चाहते हैं। रुबाब ने कहा कि मेरे मौला थोड़ी देर के लिए मुझे असगर को दे दो। अब मौला ने असगर को रुबाब को दिया। रुबाब असगर को खैमे में लेके जाती हैं। एक छोटा सा कुर्ता निकाला, वो असगर को पहनाया, एक कमर में पट्टा बांधा, छोटा सा अमामा असगर के सर पे बांधा, और पानी तो नहीं था जिससे मेरी शहजादी असगर के चेहरे को साफ करती। एक रवायत ही मिलती है कि असगर के रुख पे चेहरे पर अपने चेहरे को रख दिया, अपनी आंखों को मलना शुरू किया, अपने आंसुओं से असगर के चेहरे को साफ किया। अज़ादारों एक रुमाल असगर के गले में बांधा और उसके बाद जनाब रुबाब असगर से वसीयत करती है, ऐ मेरे असगर, अरे मालूम है तुम हैदरे कर्रार के पोते हो। देखो तुम्हारे बाबा तुम्हें मक्तल में ले जा रहे हैं, मगर मेरी बात सुन लो, ऐसा ना हो कि अभी तक जो भी मक्तल में गया है उसने आका पर आँच आने नहीं दिया है। असगर जब हुरमुला का तीर चले ना तो वो तीर गले पर ले लेना, हुसैन के ऊपर वो तीर ना आने पाए। सरोसीना पीट के मातम करो, हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे। पूरे मसाइब नहीं कर सकता। अज़ादारों एक तो ज़ैनब को इस मर्तबा असगर को हुसैन ने अपनी गोद में लिया, ले करके उस पे कपड़ा डाला, लेके चले मक्तल में। अब अज़ादारों आप ये सोचें कि मेरे मौला ने कहा है, और समय तुम बेगरीबिम और शहीद फंदूनी, जब तुम हमारी गुर्बत को सुनना, हमारी शहादत को सुनना, अरे दारो बतार रोना, कई पास तस्वीर तिफली, कैसे मैं अंदर के लिए मक्तल में पानी मांग रहा था। अज़ादारों इधर हुसैन ने असगर के लिए पानी का मुतालबा किया, उधर से तीर हुरमुला चला और वो बहादुर खैमा पर इस मंजर को देख रही थी। तीर ऊपर जा रहा था। एक मर्तबा रुबाब ने असरारे गैबी से कहा होगा, ऐ असगर देखो तीर ऊपर जा रहा है। असगर बाप की गोद में हुमके तीर को अपने गले पर लिया, मगर असगर ने अपनी माँ से कहा होगा, ऐ माजरे गिरानी, मैं क्या करता, तीर का वजन ज्यादा Ya Hüseyin.